Okay. Today we will start Gauss law. Okay. So question arises here: why we are studying Gauss law? Why? What is the use of this Gauss law? Actually, I can tell you that it talks about law of nature. Because it talks about actually symmetry. Well, this holds, nature like symmetry, and in this theorem, this law actually mandates the symmetry. Well, then we already have Coulomb's law. We already studied Coulomb's law to find the electric field in a space. This is electrostatic field due to given charge distribution. But when you use Coulomb's law, you know the charge distribution, how it is defined. Okay? You know how it is defined. Well, we have used a lot of integration in finding the electric field by Coulomb's law, and they are just parallel to each other. You can find the Gauss law from Coulomb's law actually, but there is some reason behind why we are studying Gauss law. Because Coulomb's law allow you to find the electric field in a space when you have defined charge distribution. You know how the charge is distributed. Actually, you have defined the point function, charge per unit length, charge per unit area, and volume, charge per unit volume. And it was over the ring, line charge, or disk, charge was distributed over disk. So you know how the charge is distributed. Okay. And charge, suppose we have this disk, and you can find electric field at here if you know how the charge is distributed over this surface. Well, but sometimes you don't have any idea about how the charge is distributed. Then how can you find the electric field? So this is the reason we are studying Gauss law. It allows you to find the electric field. Gauss law allow you to find the electric field when we don't know how the charge is distributed. Okay. It's the basic basic region we are moving from from Coulomb's law to Gauss law. When don't have any idea actually how the charge is distributed, or also it allow you to find the electric field
within the charge distribution. Within the charge distribution. Suppose you have a sphere. You can easily calculate, and it has a total charge Q. This is solid sphere. Total charge Q distributed uniformly within the volume. You can calculate the electric field at this point, considering the point charge here, like Q by 4 pi epsilon naught R cube vector. What magnitude you can write? A square. But can you find the electric field here within the charge distribution? Do you have any idea? Okay, Coulomb's law. From Coulomb's law, you can find the electric field within the charge distribution. Within the charge distribution means inside this charge distribution. Here, here, and here. You don't find electric field from Coulomb's law. So, we will study Gauss law to find electric field within the charge distribution. Okay. So, it's very important that now we are moving ahead. So, we will find some equations, differential equations, and if you know how to solve that differential equations, you can easily find all these things. Okay. We will see the divergence. Okay, basic knowledge of divergence. We can use this in this chapter, so we can solve all these things. Well, so in physics, we are studying Gauss law, which relate electric field and charge distribution. Okay. Sometimes electric field is given and you can find the charge distribution. And some other case, electric charge distribution may be given, you can find the electric field. Okay, so this is a game here. You have to develop a relationship between electric field and charge distribution. So I can say Gauss law is a basic fundamental law relating the distribution of electric charge to the resultant electric field. The resultant electric field. We have equations. Okay, we will develop equation to relate electric field and charge distribution. We have integral equation, integral form actually, and also a differential form. Okay,
in integral form, it states that we can consider a arbitrary closed loop. Arbitrary closed loop. Okay, and charge is distributed here. Maybe discrete, maybe, who knows, maybe discrete or continuous. But how it is distributed, you don't know actually. But you can find the flux in passing through this surface. Okay, you can find the flux. You know what is the flux? Actually, do you know anything about flux? We will study this flux. Okay, we will define flux, electric flux here. But in integral form, it just tells you that electric flux passing through this arbitrary closed surface. This closed surface is proportional to the charge enclosed. This is the charge enclosed. Okay, but you don't have any idea how it is distributed. Just only know the quantity of the charge enclosed in this volume or this surface, contour. Well, so this is very important thing to understand here. Now, you should know what is electric flux. Then we can define these equations, integral or differential. And we will elaborate all these things and we will see some numerical problems based on these equations. We will define Laplace and we will see Laplace and Poisson's equations. But what is here, come to this point, what is the electric flux? It's a measure of the electric field through a given surface. Okay. Actually, electric field itself doesn't flow. It is, you can just say that some amount of electric flux is passing through the surface, but in reality electric field doesn't flow. Well, although the electric field cannot flow, okay, it is just a way to describe the electric field strength at any distance
from the charge causing the field. From charge causing the field. Okay, if you have a charge, you can find the flux. This means you can find the electric field there. Suppose we have a point charge here plus Q, and it is enclosed by this area, this surface. Then what is the amount of flux that is passing through this? It is symmetrically, actually, symmetrical surface. It is a sphere. Then we want to know the electric field at this point. Then you can see a flux is nothing but integration. You take this a small area dA, and for this is closed loop, vector E dot vector dA. Okay, this is, we can produce the electric field in this direction, and dA is also a area vector. So here we are using the integral equation. This is the flux, and this is equal to charge enclosed by epsilon naught. Okay, and we can have any type of a charge distribution here. So if you want to know the electric field at this point, you may find it within the charge distribution or away from the charge distribution. We have to find the flux, and this will be nothing but charge enclosed by epsilon naught. Only you have to add this charge, how much charge you have to know, and how it is distributed you don't know still. But in Coulomb's law, you must have to know how this charge is distributed. But here, just you have to know what is the total charge enclosed within this surface. You can easily find this flux, E dot dA, charge enclosed by epsilon naught. If you know the flux, charge enclosed by epsilon naught to the surface, then if you want to know the electric field at this point, you have to draw this hypothetical surface. This hypothetical surface. And here we are using the integral form, then it must be symmetrical. Symmetry mandate the integral form. If you are using the integral form, then the hypothetical surface must be symmetrical. Here you see a sphere is symmetrical. You can also have a planar symmetry. We will see when charge is distributed over a plane, then you can use the planar symmetry, and you can also have cylindrical symmetry. Okay. Now we have enough now a point to say that we know, if you know the flux, and flux is nothing but taking a small elemental area dA, and electric field may be in this direction, E dot vector dA closed loop is equal to charge enclosed by epsilon naught. But what about when you don't know, we don't have this symmetry, surface.
कंडीशन. ओके, व्हेन सिमेट्री कंडीशन आपको यदि नहीं दिया हो, यदि ये जो सरफेस है ये यदि सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग जो इंटीग्रल इक्वेशन यूज कर रहे थे, इसके जगह हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे. ओके, आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये चार्ज आपको यहां पे दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, देन आप किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं. देन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज ए पॉइंट फंक्शन. दिस इज ए पॉइंट फंक्शन. ये पॉइंट फंक्शन है. आपको किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे, तो किसी पॉइंट पे आपको ये निकालना होगा डेंसिटी, जो क्या है? चार्ज डेंसिटी है. टोटल चार्ज नहीं है इसके अंदर, जो हम इससे पहले यहां पे लिख रहे थे. ये किसी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है. ओके, हम लोग डाइवर्जेंस देखेंगे. अभी हम चाह रहे हैं कि जो आईटी के लिए है उसके लिए हम पढ़े अभी, और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इरेडोव और डेविड ग्रिफिथ एंड अमेरिकन जो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, पीएचडी क्वेश्चंस, पीएचडी आस्क्ड क्वेश्चंस. ओके, हम लोग देखेंगे उसमें. हम लोग ये न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जब हम लोग डाइवर्जेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, लैप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, पॉइजन्स इक्वेशंस पढ़ेंगे. पर हम चाह रहे थे पहले हम आईटी के लिए पढ़ लें सबसे पहले, और बीएम शर्मा पढ़ेंगे हम लोग, और इरेडोव. ओके, जहां पे आपका सिलेबस है इरेडोव का, वही पढ़ेंगे. बाकी हम पूरा इरेडोव सॉल्व करेंगे. हम लोग देखेंगे पूरा इरेडोव सॉल्व करेंगे, डेविड ग्रिफिथ सॉल्व करेंगे, और ये पीएचडी क्वेश्चन जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी, शिकागो, एमआईटी, बफेलो यूनिवर्सिटीज जो पूछा क्वेश्चन है, हम लोग इससे भी डिस्कस करेंगे. वेल, बट आप इससे देखिए, हम लोग इसे 3 क्वाड्रेंट में लिखते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और कार्टेशियंस. लेकिन आपको जो आईटी में है, कभी कभी आप यूज कर सकते हैं इसे. आप कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं डेली बाय डेल एक्स, मतलब हाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट साथ कैसे वैरी कर रहा है. एंड दिस इज योर चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट. ये आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आईटी क्वेश्चंस में आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया हो. ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दिया हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. और ये भी हमको यदि चार्ज डेंसिटी पता हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. ओके, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अब पहले हम आईटी के लिए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इरेडोव बनाएंगे, उस इरेडोव के लिए कुछ और हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर डेविड ग्रिफिथ और गेट क्वेश्चंस और ये लोग हम लोग पढ़ेंगे. तो हम लोग देख चुके हैं फ्लक्स है क्या, जो आप वेक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं. ई डॉट आप एरिया वेक्टर है डीए, इससे आप फ्लक्स निकाल सकते हैं. ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है किसी का. तो क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि फ्लक्स जब कोई सरफेस दिया हो, आपके पास यदि सरफेस दिया हो तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे. ओके,
और इसके ये है चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया रहेगा जिस तरह, जैसे आप एक कंसीडर कर सकते हैं, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और इसका हाइट h है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रहा है। देन आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स यहां पे कितना जा रहा है। हम लोग पहले सीखते हैं फ्लक्स किसी भी सरफेस से कितना पास होगा। आपको इस तरह से सिलेंडर रख दिया गया है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो वो बताना है इससे फ्लक्स कितना पास होगा। करना क्या है, आपको इसका प्रोजेक्शन लेना है। आप इस सिलेंडर का प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा। आप प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, सिलेंडर यहां पर रखें और उस दीवार में इसका शैडो देखें तो आपको रेक्टेंगल बनेगा। तो आप इस साइड से देखें, इस साइड से वो कैसा दिखेगा, दूर से जब ये साइड दिखते हैं सिलेंडर को तो हम लोग रेक्टेंगल दिखता है और रेक्टेंगल जो बनेगा ये बनेगा इस तरह से और इसका 2r होगा ये और ये h। तो आपका फ्लक्स जो हमारा है ये हो जाएगा E, ये क्योंकि ये अभी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म है। ओके, आप इस इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करना होता है। तो E इंटू इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 2r। ये आपका फ्लक्स है इस सिलेंडर के पास होते हुए। ओके, देखिए अब इसे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, आप इसे थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, इस एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, तब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। देख सकते हैं आप इसके एक्सिस को थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं। अब ये हमारा सिलेंडर है, ये जो एक्सिस है हम इसे इंक्लाइन कर देंगे थीटा से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से इसे क्रॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से है, यहां से इस स्मॉल आधा पोर्शन से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है और नीचे से इस स्मॉल पोर्शन शैडो जो हम कर रहे हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास होगा। और एक कर्व सरफेस से, जो कर्व सरफेस से रेक्टेंगल है जो इंक्लाइंड हो जाएगा हमारा इस तरह से थीटा। ओके, ये हमारा कंडीशन है। तो हमारे पास जो पहले सरफेस था, जो ऊपर का सरफेस था, ये सरफेस का एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा सर्कल लेंगे, पूरा सर्कल का आधा, और यहां भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। आप बड़ा आर है तो बड़ा आर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर और सिंस ये इंक्लाइन हो गया है तो एरिया आप बता सकते हैं कि एरिया वेक्टर हमको लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फ्लक्स में ई डॉट ए कर रहे हैं। एरिया वेक्टर होता क्या है, यदि आप मान लेते हैं एरिया है तो इसका जो परपेंडिकुलर जो है ये इसका एरिया का डायरेक्शन है। यदि आप इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर जो आपकी तरफ से जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ये एरिया का डायरेक्शन है। एरिया का क्वांटिटी तो हम जान रहे हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं, पर डायरेक्शन होगा आप जिस साइड से देख रहे हैं उस पे ये परपेंडिकुलर, आप जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो उसका वेक्टर का डायरेक्शन है। यहां पे क्या होगा, यदि हम फ्लक्स देखना चाह रहे हैं कि फ्लक्स कितना आ रहा है, तो यहां से देखेंगे, इस साइड से आकर देखेंगे, तो ये जो एरिया है ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का एंगल थीटा है। ओके,
क्योंकि ये थीटा इंक्लाइंड हुआ है तो इस पे नॉर्मल जो होगा, इस सरफेस नॉर्मल, ये भी थीटा इससे इंक्लाइंड हो जाएगा। तो ये कर्व इस पोर्शन से फ्लक्स कितना होगा, यू कैन से फ्लक्स इस पोर्शन से हम φ1 लिख देते हैं 1, देन आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, और ई एरिया जो यही रहेगा हमारा एरिया 2RH कॉस थीटा। इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये जो सरफेस है इसका डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस था, कर्व सरफेस थीटा लिए, इसके साथ जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जो ये एरिया है यहाँ पर, ये एरिया, इसके दोनों का बीच 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एरिया के साथ फिर ये कर्व सरफेस का जो एरिया है, इसका जो कर्व सरफेस का एरिया हम ये ले रहे हैं, दोनों एक पूरा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये यदि थीटा है तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बोल सकते हैं कि ऊपर का जो फ्लक्स है φ2 वो क्या होगा, हमारे पास होगा ई एरिया πr²/2 एंड साइन थीटा। और सिमिलरली इसके लिए φ3 जो दोनों बराबर होगा, ये होगा πr² 2 साइन थीटा। तो टोटल फ्लक्स आप ऐड कर दें, टोटल फ्लक्स आपको ऐड कर देना चाहिए φ1 प्लस φ2 एंड φ3, दिस इज द टोटल फ्लक्स। ओके, इस तरह से जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे, तो हम एक सिलेंडर को जब इंक्लाइन करते हैं तो इतना फ्लक्स उस सरफेस से क्रॉस होता है। इसमें प्रोजेक्शन एरिया आपको लेने आना चाहिए। प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, इसके जगह कोन भी हो सकता है, हम सिलेंडर की जगह पर कोन भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, सेम केस रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हम ये कंसीडर करते हैं, इस तरह से हम लोग कोण ले लेते हैं, और ये जो एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है। दो केसेस लेंगे, इस जब ये जो कंडीशंस है, ये हमारा रेडियस r है, और एक सेकेंड केस में जब हम इसे इंक्लाइन कर देते हैं, इस एक्सिस को इंक्लाइन कर देंगे, तो हमारा फ्लक्स कितना पास होगा। तो फ्लक्स हमारा कितना पास होगा, देख सकते हैं, इस स्मॉल पोर्शन से आपका पास होगा। पिछले जिस तरह से हम सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम को, वो फिर से इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका प्रोजेक्शन एरिया लें, इसका प्रोजेक्शन एरिया क्या आएगा, और इसका हाइट h है, तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रोजेक्शन एरिया होगा ट्रायंगल होगा इस तरह से। अब देखेंगे इधर प्रोजेक्ट होगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये डायमीटर जो 2r होगा और हाइट h होगा। तो अब इसका एरिया क्या होगा, आप एरिया आसानी से ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं, जो है हाफ इंटू बेस 2r है आपका, एंड हाइट h, एंड यू हैव r इंटू h। तो इस फ्लक्स इससे कितना पास हो रहा है, इस जो ऊपर वाला अपर जो पोर्शन है उससे कितना पास हो, नीचे से तो कोई पास नहीं हो रहा है, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो नीचे से इस
जो एरिया है उसको, तो इस केसेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, जब इंक्लाइन कर देंगे इस तरह से, थीटा आप कह सकते हैं इंक्लाइन हो गया, तो यहां से भी पास होगा। तो यहां इस फर्स्ट केस में फ्लक्स हमारा क्या होगा, E इंटू आर इंटू एच। ओके फिर उसी तरह से जब ये इंक्लाइन हो गया तो इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल एरिया का ये होगा परपेंडिकुलर इस सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और ये जो थीटा होगा, तो फ्लक्स हमारा इस केस में इस सरफेस से पास कितना होगा, वो होगा ई ए कॉस थीटा। जब आप इसे इस तरह से 90 डिग्री करते हैं, इस एक्सिस को जब इसके पैरेलल कर देते हैं, तो क्या कॉस हमारा क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, हमारा फिर से यही हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे जब इंक्लाइन करते हैं थीटा, तो हमारा कितना फ्लक्स होता है, ई ए, और एरिया की जगह आप लिख सकते हैं आर एच कॉस थीटा। और यहां से क्या पास हो रहा होगा, ये एरिया ऊपर का एरिया तो परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं ये एरिया परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एरिया इधर से देखेंगे, इस एरिया को नीचे से देखेंगे। इस एरिया को देखने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, आंख यहां लगाना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, और इसे देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, इस एरिया को देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, और ये इसका डायरेक्शन होगा इस एरिया के लिए। और ऊपर जो एरिया है ये कर्व सरफेस, इसे आपको यहां से देखना पड़ेगा, तो इसका प्रोजेक्शन हमें ये ट्रायंगल दिखेगा। तो ये देखिए दोनों एरिया क्या है, दूसरे के, ये जो हम यहां देख रहे हैं ये डायरेक्शन दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिंस यहाँ पे कॉस थीटा है, इसके परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा। तो इसके यहां से फ्लक्स कितना पास होगा, तो हमारा होगा E इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर आधा एरिया लेना है, एंड साइन थीटा। अब टोटल फ्लक्स आप जोड़ देते हैं, दिस और दिस, अब टोटल फ्लक्स जोड़ देंगे। इस केसेस में ये दोनों फ्लक्स है, जिसे हम जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, और इस केस में फ्लक्स हमारा ये है। तो हम देखें जब यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो हम किसी भी सरफेस से किस तरह से हम निकाल सकते हैं फ्लक्स। अभी हम लोगों ने देखा सिलेंडर से कैसे निकाल सकते हैं, कोन रखा होगा तो कैसे निकालेंगे। यदि आप हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से हॉलो सिलेंडर ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, इस तरह से हमारा सरफेस है, आप देख सकते हैं इस तरह है, और इधर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, और ये रेडियस r है और लेंथ l है, यह हॉलो सिलेंडर। इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, आप देखेंगे कि सरफेस जो है कुछ दूर पे एक कर्व जो सरफेस है वैसा ही दिखाई पड़ेगा, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। आप दूर से देखेंगे कि इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो रेक्टेंगल होगा। तो ये रेक्टेंगल है, इसका डायमीटर कितना है 2r है, इसका लेंथ a, इसका एरिया क्या होगा 2rl, और फ्लक्स क्या होगा आपका E इंटू 2rl, दिस योर फ्लक्स। ओके, तो हम लोग अभी फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं। जब फ्लक्स निकाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखेंगे, और ये फ्लक्स हम लोग सीख सकते हैं।
हम लोग ये कंसेप्ट में क्या क्या अप्लाई करना है, सिर्फ ये कि आपको आना चाहिए कि हम प्रोजेक्शन एरिया कैसे लेंगे। किसी सरफेस का दिया हो तो, यदि टिल्ट कर दिया हो, कुछ एंगल से टिल्ट कर दिया हो तो क्या होगा। ओके, इसे एक और हम ले लेते हैं सरफेस। ये देखिए इस तरह से है, आप ये क्या है, पाराबोलॉइडल सरफेस। ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस तरह से, जो जितना यहां से जाएगा वही तो यहां से निकलेगा फ्लक्स। ओके, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनेट दिया हुआ है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होगा। तो जो ये देखिए सरफेस, इसका सरफेस का वैल्यू आप मान लेते हैं रेडियस r है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, इनेट इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फ्लक्स निकालने का भी सीख रहे हैं। फ्लक्स निकालने के लिए बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारे पास आएगा, यदि कुछ ऐसा सरफेस हो हाँ, देख सकते हैं जब इस तरह सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है और इस तरह से कट करते हुए चला गया, तो फ्लक्स कितना होगा। देखिए इस तरह से हेमिस्फीयर है, तो फ्लक्स कितना होगा। यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस से हम निकालना चाह रहे हैं और इसको दो बार कट किया है, तो हम लोग बोल देंगे फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स इज जीरो। यदि आप देखते हैं जब भी दो बार कट करे तो फ्लक्स को आप जीरो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार यहां पे जब एंट्री हो रहा है उतना ही निकल गया बाहर, तो इससे फ्लक्स कितना पास हुआ, जीरो। आप इस तरह देख सकते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, यदि यहाँ पे चार्ज हम देते हैं Q1, यहाँ पे Q2, यदि ये इस तरह से फ्लक्स गया, इसे कितना फ्लक्स पास हुआ और इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हुआ, इसके कारण जीरो नहीं है, नॉट जीरो, क्योंकि इस सरफेस को देख लीजिए, ये सरफेस है, एक बार कट कर रहा है ओनली वंस, और इस सरफेस को यहां भी 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज जीरो। यहां पे चार्ज है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से पास होगा इस सरफेस के थ्रू जीरो होगा, पर इस सरफेस के लॉन्ग जो पास होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक बार ही कट किया है। ओके, तो हम लोग कट करके भी देख सकते हैं, जब इस तरह सरफेस हो तो कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट किया तो हम लोग बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जीरो है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना पास हो रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलेगा। यदि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता तो हम लोग ये एरिया ले लेते। देखिए आप इस एरिया को एक ही बार कट कर रहा है और ये सरफेस को भी एक ही बार ये कट कर रहा है, पर इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बार कट कर रहा है। नीचे सरफेस है ठीक है, पर इसको अभी एक बार कट कर रहा है, नीचे से भी एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए जीरो नहीं हुआ। नीचे से पास होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनेट है और ये रेडियस r है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल होगा, इनेट इंटू पाई r स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम फ्लक्स
हमारा क्या हो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो। ये बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो इजी क्वेश्चन है। ये देखिए स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर नॉन कंडक्टिंग सरफेस। यह स्क्वायर नॉन कंडक्टिंग सरफेस है इस तरह से। और यहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, और जो एक्सिस है दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर सरफेस। इस चार्ज के कारण देन द फ्लक्स passing through the surface due to charge Q is flux, sorry phi। और इसमें चार्ज दिया हुआ, इस पर चार्ज है जो डेंसिटी यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसका, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसका सिग्मा। तो आपको फोर्स निकालना है, इससे फोर्स कितना लगेगा, फाइंड द फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके कारण से, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हम लेते हैं, आप मान लेते हैं डीए लेते हैं, स्मॉल एरिया। ओके, आप इसे देख सकते हैं यहां पे, ये सॉरी स्क्वायर है, तो इसे हम स्मॉल एरिया जो डीए कंसीडर किए हैं, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ई है इस चार्ज के कारण। ओके, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है यहां पे, फोर्स पूरा होता है Q, यहां पे जो चार्ज है, यहां पे मान लेते चार्ज है डी क्यू है, तो डी क्यू इंटू ई। और डी क्यू क्या होगा, और डी क्यू क्या होगा, चार्ज जो डेंसिटी यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए इंटू ई, एंड दिस इज द डी एफ। आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे सर्फेस पे फोर्स निकल जाएगा, एफ हो जाएगा। और इस साइड में इंटीग्रेट कर दे, सिग्मा ई डॉट डी ए, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो सेम डायरेक्शन में एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो हमारा आ गया सिग्मा इंटू फ्लक्स, ये आपका फोर्स होगा। ई डी ए क्या होता है, पूरा अपना फ्लक्स होगा, तो वो फोर्स इतना होगा। तो जब चार्ज यहां पर रखते हैं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये जो स्क्वायर सरफेस है उसका वैल्यू ये आएगा, दिस इज योर फोर्सेस। ओके, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इन दिस वे, just a simple basic equation, you know. When you perform this integration, okay, this is very easy. But this is, for I'm making for 12th standard for IIT, BM sir I'm solving. Thereafter I will solve Rudolph. But for David Griffith, I will go on the basic calculations of Laplace, mirror images, and
where I will not solve like this. But this will not be for you actually, for IT. This will be for higher education person. So I think today is enough. Next day I will teach you the application of the गॉस लॉ. हम गॉस लॉ को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इससे हम इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. थैंक यू.